اچھا جی، کل ہم نے یہ الدرس التاسع کا جو حصہ با تھا اس کا آغاز کیا تھا، اور میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہاں پہ ہم صرف دو نئی چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک طریقے سے دیکھیں تو ایک ہی نئی چیز ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس میں اور الف میں صرف فرق یہ تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی مثالیں تھیں، آپ نے غور کیا ہوگا، وہ بغیر الف لام والے لفظوں کی تھی۔ یہاں دیکھیں، طالب قدیم، مدرس جدید، درس سہل، تاجر شہیر، مہندس کبیر، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جہاں پہ موصوف پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ تنوین ہے۔ تو اسی ترتیب پر جو صفت ہے اس پہ بھی تنوین نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک نئی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ یہاں پہ جو موصوف ہے اس پہ الف لام ہے۔ جب اس پہ الف لام ہے تو آگے آنے والی صفت پہ بھی الف لام ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہوگی؟ جی چلیے جی بھائی رفاقت، آپ پڑھ لیں۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الی المکتبۃ، وہ اسکول کی طرف گیا۔ اچھا، مکتبہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مکتبہ کسے کہتے ہیں؟ لائبریری. لائبریری۔ لائبریری، سوری، وہ لائبریری کی طرف گیا۔ وہ لائبریری کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو عین الطالب الجدید ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے؟ یہ سر سوالیہ جملہ ہے، یہ سوالیہ استفہامیہ۔ جملہ ہے، تو یہ نہ اسمیہ ہے نہ فعلیہ ہے۔ وجہ سے میں نے کیا بتائی تھی کہ اسمیہ اور فعلیہ کس کی قسم ہے؟ ایک خبریہ کی قسم ہے، جملہ خبریہ کی خبریہ کی قسم۔ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جس جملے میں ہم کو خبر دیتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور اور فعلیہ، فیلئر. ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چونکہ خبر ہی نہیں ہے، یہاں تو ہم سوال کر رہے ہیں، تو خبر تو ہم معلوم کر رہے ہیں، خبر دے نہیں رہے، تو یہ جملہ سوالیہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے، جملہ فعلیہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، ذہبہ وہ گیا، یہ فعل جملہ کیا اس نے۔ فعلیہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس میں چونکہ خبر دی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو پہلا لفظ ہے وہ فعل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی بھائی عزیز، یہ جملہ کون سا ہے؟ ہوا عند المدیری، جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ اس لیے کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے یہ وہ خبر فعل، دے رہی وہ فعل نہیں ہے، فیلئر. ٹھیک ہے جی بھائی عاصم، یہ جملہ کون سا ہے؟ ہوا فعل فاصل، وہ کلاس روم میں. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ وہ جملہ فعلیہ، یہ جملہ خبریہ ہے یا کچھ اور؟ یہ خبریہ ہے سر. خبریہ ہے۔ اب خبریہ ہے تو اس کی قسم کون سی ہے، اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ بالکل سادہ سی ہے کہ اس کا پہلا لفظ فعل نہیں ہے، فعل ہوتا تو فعلیہ بن جاتا، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، آگے ہم ایک نیا لفظ پڑھنے والے ہیں، الذی، ٹھیک ہے۔ الذی، میں وائٹ بورڈ دیکھیں، ایک نیا لفظ ہے، اور اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، اگر میں اردو میں جملہ بولتا ہوں، ایک بات تو میں نے یہ کہی، وہ نیا طالب علم، ٹھیک ہے، وہ نیا طالب علم، ٹھیک۔ اچھا، وہ نیا طالب علم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات جب کرتے ہیں، طالب علم کا ہم نے ایک بس بیان کیا کہ بھائی نیا طالب علم، میں اس کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں، وہ نیا طالب علم امریکی ہے، ٹھیک ہے، یہ میری خبر ہے، وہ نیا طالب علم امریکی ہے۔ تو ممکن ہے کہ صرف نیا کے لفظ سے نا وضاحت نہ ہو رہی ہو، مجھے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے، تو کبھی کبھار میں جملے کی صورت میں کسی لفظ کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ نیا اچھا طالب علم امریکی ہے، تو میں نے دو صفت لگا دی، نیا بھی لگا دیا، اچھا بھی لگا دیا، یعنی میں نے ایک لفظ کو دو لفظوں کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں جملہ استعمال کرتا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے، جیسے اگر میں اس کو یہاں یوں کہوں کہ وہ نیا طالب علم جو
अभी गाड़ी से उतरा, वो नया तालिब इल्म जो अभी गाड़ी से उतरा अमरीकी है। ठीक है, तो अब देखें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने वो जो एक इबहम सा था, एक एक जहालत सी थी कि भाई नया तालिब इल्म, कौन सा नया तालिब इल्म जिसके बारे में बात हो रही है, तो इस जुमले ने उसको मजीद वाज़ेह कर दिया कि जो अभी अभी गाड़ी से उतरा है वो अमरीकी है। ठीक है, ये कुछ वाज़ेह हुआ। तो कभी कभार हम मजीद जुमले के जरिए से या मजीद जो है ना वो छोटे छोटे फ्रेजेस के जरिए से किसी लफ्ज को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब उसके लिए हम यहाँ पे कुछ मजीद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया जो। ठीक है, जो अगर मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाऊं तो मैं कहूंगा कि द न्यू स्टूडेंट हु केम आउट ऑफ द कार इज अमेरिकन। तो यहाँ पे दो लफ्ज आ गए, जो, और अंग्रेजी में लफ्ज आ गया हु। इनको हम उर्दू में या अंग्रेजी में हम कहते हैं, रिलेशनल प्रोनाउंस। ठीक है, वो प्रोनाउंस जो कि रिलेशंस को शो करते हैं, वो प्रोनाउंस जो कि दो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं। और उर्दू में और अरबी में हम इसको बोलते हैं इसमें मौसूला। इसको हम कहते हैं इसमें मौसूला। मौसूला कहते हैं जोड़ने को, यानी वो इस्म जो कि जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अरबी की तरफ। अरबी में ये जो लफ्ज है अल्लज़ी, अल्लज़ी, इसका मकसद यही है, यानी जब हम किसी ऐसे लफ्ज की तशरीह करना चाह रहे हों जिस लफ्ज की तशरीह एक या दो लफ्ज के जरिए से मुमकिन ना हो और हमें जुमला इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आए, तो हम वहां पे इसमें मौसूल का सहारा लेते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउंस भी कह देते हैं, अल्लज़ी, हु। और इसी तरीके से उर्दू में हम इसका कर देते हैं तर्जुमा जो। ये बात कुछ वाज़ेह हुई? जी अब सर, देखिए, इस पे एक छोटा सा जी जी क्वेश्चन है जी जी सर। ये जिस तरह से आपने कहा कि ये एक वो है, इसमें मौसूल है, और क्लैरिटी के लिए हु जी जब कहेंगे जी जी तो इसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस की तखसीस होगी, या इसमें अलग अलग ये सारों के लिए की इस्तेमाल होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये जो अल्लज़ी है ना, ये अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिसकी आप वजाहत करना चाह रहे हैं, जिसकी आप तशरीह करना चाह रहे हैं, जिस लफ्ज की या जिस इस्म की, अगर वो मुज़क्कर है नंबर एक और वो वाहिद है तो हम अल्लज़ी इस्तेमाल करते हैं। मुअन्नस के लिए और गैर वाहिद के लिए, दो के लिए, 10 के लिए, वो दूसरे अल्फाज है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कुरान करीम में कई जगह इस्तेमाल हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लफ्ज आया ना कुरान करीम में, जी सर, बिल्कुल। अल्लज़ीना। मुझे अल्लज़ीना मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए हम इस्तेमाल करते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तो ये जो अल्लज़ीना है ना, ये भी इसमें मौसूल है। ठीक है, ये इसमें मौसूल है, लेकिन ये इसमें मौसूल जमा के लिए है। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अगली किताब में। जमा के लिए है, ये मुजक्कर के लिए, लेकिन ये जमा के लिए। इसी तरीके से मोनस के लिए इंशाल्लाह हम अगली किताब में पढ़ेंगे, अल्लती का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अभी एक तरीके से यहाँ पे ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लफ्ज अल्लजी को। अल्लजी इस्तेमाल होता है मुजक्कर के लिए और वाहिद के लिए। और तर्जुमा अगर हम इसका जानना चाहें तो तर्जुमा इसका है हु और जो। ठीक है, अभी देखिए जुमला पढ़ते हैं, जुमले में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है ये जुमला। जी भाई आसिम, आप पढ़ें इसको। मन ज़ालिकल रजुलुल तवीलुल लज़ी अच्छा खरजल बस एक फरजल। मिनट, देखिए मैंने इसको छुपा दिया। ठीक है, पहले हम यहाँ पे यूं करते हैं, मंजालिका रजुल तवील, क्या मतलब है इसका? अच्छा पहले तो मैं इसको तवील को भी हटा देता हूँ। ठीक है, मंजालिका रजुल सवालिया जुमला है। ठीक है, क्या? मन, मन का तर्जुमा क्या होता है? कौन? कौन। कौन? ठीक है, कौन। जालिका रजुलू, वो लड़का कौन है? अच्छा, और रजुल वो किसे वो कहते आदमी को, आदमी। आदमी, आदमी, आदमी। हैं? वो आदमी। ठीक है,
कौन है वो आदमी, मन जालिक कौन है? रजुल, कौन है वो आदमी। अब हो सकता है कि भाई आदमी बहुत सारे हों, किस आदमी की बात हो रही हो, सामने 50 आदमी घूम रहे हो, इशारा भी कर रहा है वो आदमी, तो वो इशारा किसकी तरफ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसने एक उसकी सिर्फ बयान की यहाँ पे, सिर्फ ये बयान की अतवील, ठीक है, अतवीलु बयान की। लंबा। अतवीलु, तो ये वस्फ यहाँ जो बयान हुआ, तो इसने इसको थोड़ा सा मजीद वाजे किया कि भाई यहाँ 50 आदमी घूम रहे हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ लंबे नहीं है। तो उसने कहा कि मन जालिका रजुलु तवीलु, कौन है वो लंबा आदमी। अब हो सकता है वहां पे 10-15 लंबे आदमी हैं, बात मजीद वाजे करने की जरूरत है। तो अब देखें ये मजीद जुमला लेकर आ रहा है। क्या जुमला लेकर आ रहा है, ये कह रहा है, आगे ये बात कहेगा कि खरजा अल आना मिनल मदरसा। ये क्या तर्जुमा बनेगा इसका, खरजा का मतलब हमने पढ़ा है निकला, निकला, एग्जिट, कहाँ से निकला, मदरसा, मदरसा में से निकला। मदरसे से निकला। अच्छा, अल आना का मतलब होता है अभी, इस वक्त, निकला मदरसे से इस वक्त, ठीक है। अब देखिए ये हमने इसको जोड़ना है अतवीलों के साथ, और रजुलू की हमने एक तो बस हमने बयान किया तवीलों के जरिए से कि वो लंबा आदमी कौन है। अब बात वाज़ेह नहीं हुई थी, अब हमने ये खबर भी देनी है कि अभी अभी जो मदरसे से निकला है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने देखें ये खबर देनी है, लेकिन ये खबर हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के लिए हमें एक इसमें मौसूल की जरूरत है। वो इसमें मौसूल क्या है यहाँ पे, चूंकि ये लफ्ज मुजक्कर है अर्रजुलु, ये लफ्ज वाहिद है, और मुजक्कर वाहिद के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अल्लजी। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये कहा कि मन जालिकल रजूल, कौन है वो आदमी, अतवीलु, कौन है वो लंबा आदमी, बात वाज़ेह नहीं हुई थी। अल्लजी जो, अल्लजी जो, खरजल आना मिनल मदरसा, जो इस वक्त मदरसे से निकला है, वो आदमी को। कुछ बात वाज़ेह हुई, जी जी, जी सर, समझ आ रही है। ठीक है। देखें, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह देता मन जालिका रजुल तवीलु, तो जुमला तो मुकम्मल था कि वो लंबा आदमी कौन है। लेकिन जिससे मैं हो सकता है सवाल कर रहा हूँ उसको समझ ही ना आए कि यहाँ तो 10 लंबे आदमी हैं, या 15 हैं, या 5 हैं, या 2 भी हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे फिर मुझे एक मजीद वजाहती जुमले की जरूरत पड़ी, और मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे ये बता दूं कि वो आदमी जो कि निकला है मदरसे से। अब चूंकि जुमले की सूरत में है, तो जुमले की सूरत में जोड़ने के लिए मुझे किसी मौसूल की जरूरत है, जोड़ने वाले लफ्ज की जरूरत है, रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, जो कि इस जुमले को इस इस मौसूफ के साथ जोड़ दे। तो यहाँ पे चूंकि ये मुजक्कर है, ये वाहिद है, उसके लिए अल्लजी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने अल्लजी का इस्तेमाल, यहीं पे इसको हम थोड़ा सा तब्दील करते हैं। अगर यूँ समझें कि यहाँ पे मुझे ये कहना हो कि वो आदमी की जगह, जी जी मेरी आवाज़ शायद नहीं हो गई थी, आवाज़ आ रही, जी, भी आवाज आई है, पहले नहीं थी आ रही। अच्छा जी। जी तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे अल्लजी जो है वो वाहिद के लिए और मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अर्रजुल की जगह लफ्ज लगा देता हूँ मोन्नस, ठीक है। मैं यहाँ कह देता हूँ मुअल्लिमतुन, ठीक है, मुअल्लिमतुन। मुझे ये कहना है कि वो लंबी खातून जो अभी मदरसे से निकली वो कौन है, ठीक है। मुझे ये कहना है, ये सिर्फ समझाने के लिए अल्लती आगे आएगा, ठीक। तो मैं अर्रजुल की जगह लगा देता हूँ मुअल्लिम, अल मुअल्लिम। अब जरा जुमला बनाएं। मन तिलकल जालिकल मुअल्लिमतु मुअल्लिमतु अच्छा देखें, तवीलतु। सबसे पहले तो हमने तब क्या क्या चेंज करना है, मुअल्लिमा मुअन्नस है तो जालिक आएगा, मन तिलकल, मन तलक, तिल का मंतिल तलक, का, तो क्या हो जाएगा मंतिल का मुअल्लिमतु अल मन मुअल्लिमतु। तिलकल मुअल्लिम। इसका तर्जुमा क्या होगा, मंतिल कल मुअल्लिमतु, वो टीचर कहाँ, वो टीचर कौन है, बेहतरीन। अच्छा ठीक है, अब टीचर मुझे कौन? कहना है वो लंबी टीचर कौन है, मन तिलकल मन तिल मुअल्लिमतुल मुअल्लिमतु तवीलतु।
तवीलतु, देखें यहाँ भी तब्दीली करनी होगी, मन तिलका अलमुअल्लिमतु अत्तवीलतु। अब तर्जुमा क्या होगा? वो वो तभी लंबी वो टीचर कौन है? लंबी टीचर कौन है? वो लंबी टीचर कौन है, ठीक है। हो कौन है? सकता है मुझे मजीद वजाहत करनी हो जुमले के थ्रू, मुझे जुमला लगाना है ये वाला, खरजा अल-आना मिनल मदरसा। तो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि यहाँ पे मुझे जुमला जोड़ना तो है, लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता, मुझे उसके लिए इसमें मौसूल की जरूरत है, रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। अब ये चूंकि मोन्नस है, मोन्नस के लिए हम अल्लजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अल्लती। अल्लती इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अल्लती हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह बुक में। इतनी बात समझ में आ गई इसमें मौसूल की? सर अल्लती लिख के बता दें सर। सर हाँ मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए अल्लती को हम यूँ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे अल्लती। ये अल्लजी की को रिप्लेस कर रहा है सर यहाँ पे। बिल्कुल, अल्लजी यूँ समझ लें मुजक्कर के लिए, जैसे हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी मोन्नस के लिए, तो कौन? अल्लजी मुजक्कर के लिए और अल्लती मोन्नस के लिए। Right, sir. अच्छा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बात हो रही है वर्ड्स की, वर्ड्स मुजक्कर मोन्नस, भले से वो नॉन ह्यूमन हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी आगे एक मिसाल आ जाएगी कि यहाँ पर बात हो रही हो गाड़ी की, ठीक है, यहाँ बात हो रही हो मिसाल के तौर पर घर की, रजुल की जगह यहाँ पर हो अलबैत, ठीक है, वो नया घर, अलबैतुल जदीदु, ठीक है, यहाँ वैसे मन किएगा माँ आ जाएगा, ठीक है, माँ ज़ालिकल बैतुल जदीद, तब भी मैं अल्लज़ी इस्तेमाल करूँ, ठीक है। तो मुज़क्कर लफ्जों के लिए जो कि वाहिद हो उनके लिए मैं अल्लज़ी इस्तेमाल करूंगा, मुअन्नस लफ्जों के लिए मैं अल्लती इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। जी जी भाई रफाकत, इसको पूरा कर लें। जवाब क्या दिया? वल मुदीरुल जदीदो, जदीद। वो नया वो प्रिंसिपल है। वो नया प्रिंसिपल है, ठीक है, वो नया प्रिंसिपल। अब देखें यहाँ पे मौसूफ और सिर्फ कौन कौन से? मुदीर मौसूफ और जो है वो जद। मुदीर है, और सिर्फ उनकी जदीद। बिल्कुल, मुदीर मौसूफ है क्योंकि इसकी सिफ्त बयान हो रही है, और अल जदीद इसकी सिफ्त है। अब देखें यहाँ पे अल मुदीर पे अलिफ लाम है, तो इसलिए यहाँ अल जदीद पे भी अलिफ लाम है, ठीक है। ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है, और ये पहले है सिर्फ उसके बाद है, ठीक है। अगला जुमला भी देखें, अगला जुमला भी अल्लज़ी वाला है, इसको देखते हैं। जी भाई अजीज आप करें। वमिन वमिनिल नहीं, वलदुल मीन नहीं है, देखिए सगीरुल मीन कुछ और है। वम जी वा अच्छा, देखिए यहाँ पे जेर लगा दिया है, ये जेर असली नहीं होता, ये जेर इसलिए होता है कि देखिए नून पे भी यहाँ पे साकिन है और लाम पे भी साकिन है। यहाँ पे भी अब सगी। हमने ये पढ़ा है कि जब अल हमज़ा वस्ली बीच में आ जाता है तो ये गिर जाता है, तो इसको हम पीछे से जोड़ते हैं। तो चूंकि ये साकिन है तो अब मजबूरी है कि यहाँ पे कोई हरकत आएगी ताकि तभी जाके इससे ज्वाइन करेगा, इसलिए हम इसको कसरा देते हैं, जेर देते हैं, इसको हम कहते हैं कसरा आर्जी, टेम्पररी जेर होता है ये मजबूरी की वजह से। तो अगर आप ना भी पढ़ना चाहें ना भी पढ़ें, लेकिन यूं पढ़ सकते हैं व मनिल वलदु, ठीक है। वमिन वमनिल वलदुल सगीरुल लजी खरजल आना मिनल फस्ल। बिल्कुल, अब इसको भी हम टुकड़ों में करते हैं, ठीक है। पहले आप करें ये हिस्सा, और मनिल वलद हम कहते हैं ना, मनिल वलद। और कौन लड़का? और कौन लड़का? नहीं, और कौन कौन है? अल वलद कहते हैं लड़के को, लड़के का। हु इज द बॉय, ठीक है, कौन है ये लड़का, मनिल वलद कौन है लड़का, उन्हें लड़का। ठीक है, हु इज द बॉय। अच्छा, अब बात वाज़ेह नहीं थी, हमने इसकी एक सिफ्त बयान की, इसको एक एडजेक्टिव दिया। जी, सगीर सगीरु। अब तर्जुमा क्या होगा? मनिल वलदु अस्सगीरु, सगीर कहते हैं स्मॉल, छोटा, यंग। छोटे। छोटा। और जी वो छोटा लड़का। कौन है, ठीक है, कौन है छोटा लड़का, कौन है? ठीक है, कौन है कौन है छोटा छोटा लड़का, लड़का?
जो अब देखिए क्लास से बात हो निकला है। सकता है वाजी नहीं थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये खबर देना खरजल चाहिए, ये वाली क्या खबर देना खरजल चाहिए? आना मिनल फसली। जी, ये खबर क्या है? अगर इसको हम जुमले को अलग कर दें, खरजल आना मिनल फस्ल, तर्जुमा क्या होगा इसका? जी, क्लास खरजा से क्लास से, निकला। और अल आना का तर्जुमा? नाउ क्लास से, अल आना इस निकला वक्त, अभी अभी, ठीक है, नाउ। अभी। क्लास से इस वक्त वो निकला, ठीक है। अब हमने ये जुमला जोड़ना है अल वलदू के साथ, लेकिन हमें मजबूरी है, हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते बगैर मौसूल के, तो हमने यहाँ पे ये मौसूल लगा। अब अल्लज़ी। तर्जुमा करें। और वो, और कौन ये छोटा लड़का और छोटा लड़का लड़का जो वो जो क्लास से अभी निकला है। अभी निकला कौन है? और कौन कौन है? है छोटा लड़का जो क्लास निकला से इस वक्त क्लास से? अगर ये लफ्ज ब लफ्ज करें, और कौन है छोटा लड़का जो निकला इस वक्त क्लास से? कौन है छोटा लड़का जो इस वक्त क्लास से निकला है? ठीक है, तो क्या जवाब दे रहे हैं? वो अब्नुल मुदीरी मुदीरिल जदीदी। जी, वो वो, वो नए उस्ताद का बेटा है। अच्छा, मुदीर किसे कहते हैं? टीचर, प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल। किसे? हाँ, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो वो किसका वो बेटा है? नए प्रिंसिपल का बेटा है। वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। प्रिंसिपल का हुआ बेटा है। इब्नु, वो बेटा है किसका? अल मुदीर जदीदी, नए मुदीर का। वो नए मुदीर का बेटा है। वाज़ेह हो रहा है कुछ अल्लज़ी? जी सर। जी 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 अच्छा, सर। कोई सवाल है यहाँ पे? फिर हम आगे चलते हैं। चलें फिर आगे जी सर, चलते आगे हैं। चलो। जी चल, जी भाई आसिफ, अगला जुमला आप करें। लिमन तलकल सयारतु जमीलत। जी, सर मुझे लिमन हाँ, लिमन थोड़ा देखें, सा ये किसकी? हमने समझ। पढ़ा था हुज, किसकी? हाँ, किसकी? 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 वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? अहसन था, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? ठीक है जी, क्या जवाब दिया? या लिल हियल मुदीरी। मदीरुल जदीद थी। वो प्रिंसिपल की गाड़ी, वो वो नए नए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। वो नए प्रिंसिपल की है। वो नए प्रिंसिपल की है, ठीक है। तो देखें, लिमन तिलका, वो किसकी है? अब वो से किसकी तरफ इशारा हो रहा है? अस्सय्यारतुल जमीलतु, वो नई गाड़ी किसकी है? अब देखिए, जितने भी यहाँ पे आपको मौसूफ नजर आ रहे हैं वो अलिफ लाम वाले हैं, तो उसके हिसाब से ही जितनी भी सिफतें यहाँ पे वो अलिफ लाम वाली हैं। वो नई खूबसूरत गाड़ी, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? या वो लिल मुदीरिल जदीद, वो नए प्रिंसिपल की है। तो लिमन से हम सवाल करते हैं मिल्कियत का, और ली के जरिए से हम बताते हैं किसी की मिल्कियत के बारे में। ठीक है, लिमन किसका या किसकी, और ली जिस शख्स की या जिस चीज की या जिस जगह की हम मिल्कियत बयान कर रहे हो, उसके लिए हम ली इस्तेमाल कर लेते हैं। जी भाई रफाकत। लिमन हादल किताबुल कबीर अहो लिल मुदर्रिस ला हुवा लित तालिबति सगीर। समझा वो जी? बड़ी किताब, ये बड़ी किताब किसकी है? क्या ये उस्ताद की है? नहीं, ये छोटी तालिबा की है। अहसन था, बिल्कुल सही। लिमन हाजिल किताबुल कबीर, ये बड़ी किताब किसकी है? ठीक। अव्वल मुदर्रिस, क्या वो मुदर्रिस की है, उस्ताद की है? नहीं, वो छोटी तालिबा की है। ठीक है जी भाई अजीज। आइनल मिल आकतु सगीरतु। जी बिल्कुल सही। मिलाका सर कहते मिला का हैं किस है? चम्मच। ये छोटा चम्मच कहाँ है? ये छोटा चम्मच, अच्छा, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये के अच्छा लिए अच्छा हाजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है।
तो अइन अल मिलअक़तु सगीरा, छोटा चम्मच कहाँ है? छोटा चम्मच कहाँ है? जी। हाँ। हुआ फिल हुआ फिल कौबी, हिया ये हिया हिया फिल कौबी, फिल कूबी, कौबी वो कूब कहते हैं प्याले को, कप प्याले को, सही है, आप प्याला कह लें, वो प्याले में प्याले है। में है, ठीक है, हिया फिल कूबी, वो प्याले में है, ठीक है। अच्छा जी, भाई आसिफ। एनल कुर्सी, एनल कुर्सी मकसूर, एनल कुर्सी मकसूर, वो टूटी कुर्सी का नस्ल, टूटी कुर्सी कहाँ है? कहाँ है? ठीक है, हुआ हुनाका, हुनाका नहीं समझ में आया। यहाँ, अच्छा, हुनाका कहते वो हैं यहाँ हम, है। वहां हुनाका वहां, ठीक है, दो लफ्ज हमने पढ़े थे पीछे, एक होता है हुना, ठीक है, हुना, और एक है हुना का। हुना पीछे का। हमने पढ़ा था हुना, हुना कहते हैं यहाँ, हेयर, और हुना का वहां, देयर, ठीक है। तो हुआ हुना का क्या मतलब हुआ इसका? होना, वो हना वहां का मतलब वो वो हुआ वहां है, होना, वो वहाँ है। ठीक है, वो वहां है, और वाज़ेह होगी। हना का मतलब हेयर एंड होना का मतलब देर।